गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चों. In this video, we will be concentrating in gravitational potential. Now, this is a variable which basically defines the working tendency of the field at any point. Simply you can say कि एक फील्ड वेरिएबल है जो फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. ठीक है. और व्हाई वी डिफाइंड दिस, ये फील्ड का पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ओके फील्ड कितना वर्किंग टेंडेंसी रखता है. ओके, तो फॉर इट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग, let's first define gravitational potential. Now, the gravitational potential, okay, at any point in the field is defined something like this. Okay, now gravitational potential at any point in the field, in the gravitational field, this is equal to amount of work done in moving a unit mass. This unit mass also sometimes is called as test mass. Okay, from infinity to that particular point. कौन सा point? At which we are calculating potential, at which we are defining potential, gravitational potential. Okay, moving a unit mass from infinity to the point with constant velocity. Okay, तो when I am saying with constant velocity का मतलब क्या है कि the mass, the test mass, the unit mass is moved without acceleration. And when the mass is not accelerating, उसके ऊपर net force कितना एक्ट कर रहा है? You know, Newton's second law of motion क्या कहता है? F is equal to mass into acceleration. If the body, the particle is not accelerating, the net force acting on the particle is zero. On the basis of that, when I am saying without acceleration, that means keeping it always in equilibrium. मतलब जो टेस्ट मास हमारा infinity to point, ओके, जब मूव करके आ रहा है, ओके, तो when it is moving from infinity to the point, at every point it has to be in equilibrium. It's okay. So potential, it is written by V. Gravitational potential at any point in the field is equal to what I said, work done in moving the test mass from infinity to point. Mean work done per unit test mass. Test mass को m naught से लिखते हैं. m naught can be assumed as 1 also. Okay, and condition क्या है? Work done in moving the test mass from infinity to p. Okay, with constant velocity कहो, with constant velocity, or you say it as without acceleration, or you say it as keeping it always in equilibrium. It's okay. So you must have understood the basic thing about potential, that is gravitational potential. Okay, ठीक है. तो basically this is work done in moving the test mass from infinity to the point. Okay, and the test mass जो है that should be moving always with constant velocity or without acceleration, or you can say that it should always be in equilibrium. ठीक है. Okay, now what, this is a scalar or a vector quantity, potential. This potential basically is work done. Work done is a scalar quantity. So gravitational potential also is a scalar quantity. Gravitational potential is a scalar quantity. As I told you, this is a field property basically.
ओके, फील्ड के नेचर की बात करता है। ओके, तभी हमने कहा ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। यस, ओके। नाउ यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या बनेगी? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट मास। तो वर्क डन क्या बनेगा? वर्क डन विल बी जूल, मास केजी, तो दैट विल बी जूल पर केजी। SI unit for gravitational potential is joule per kilogram. Okay, can be written like this: joule per kilogram. Okay, and CGS unit for this is the CGS unit for gravitational potential is वर्क डन का यूनिट है CGS erg एंड मास के लिए दिस इज ग्राम, तो erg पर ग्राम। ओके, erg पर ग्राम, कैन राइट इट लाइक दिस इनवर्स के टर्म। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड टू डिराइव द रिलेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द फील्ड। ओके, now to derive the expression for gravitational potential, okay, I am considering the situation. Okay, suppose we are given with a mass m. It was an extended mass. Okay, you can assume earth also, ठीक है ना। बट जब मैं ग्रेविटेशनल प्रिंसिपल्स की बात करता हूं इन द व्यू ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या बताया था आप लोगों को कि एक्सटेंडेड मासेस आर टू बी कंसीडर्ड एज पॉइंट मासेस बाय कंसीडरिंग दैट whole of their mass is concentrated at their center of mass. The same way I am considering. Okay, let this is an extended body. I am least bothered about that particular thing. Okay, but I am assuming the mass of that particular body is concentrated at its center of mass, and I am considering that center of mass. Okay, body of mass m. Fine. Now, this particular mass is suppose this is the point. This is point P. Okay, this is point P at which I want to calculate potential. Okay, and this particular point is in the field of this mass m, which is situated at O, and at a distance r. The point P is situated at a distance r from O. It's okay. Fine. Now what I have to do? मुझे एक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है यहां पे, और पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या ट्रीटमेंट अप्लाई करना है? I have to bring a unit mass from infinity to this particular point. Okay, I have to bring a unit mass, okay, from infinity to this particular point with constant velocity, और यहां से यहां तक लेके आने के लिए मुझे उसका वर्क डन फाइंड करना है। It's okay. Now, to calculate gravitational potential at P, what we will be doing, we will be bringing a unit mass from infinity, okay, from infinity to this particular point P, keeping it always in equilibrium. ठीक, तो when this particular mass, that unit mass, okay, unit mass m naught is equal to 1. Okay, so when this mass was moving from infinity to point P, let at point J, उसका हालचाल पूछ लेते हैं. Okay, this point J is at a distance x.
फ्रॉम O. ओके, तो हमारा जो यूनिट टेस्ट मास चला आ रहा था x पर, चलते चलते उसका हालचाल पूछा, तो व्हाट इट विल बी सेइंग, क्या बोलेगा ये? द टेस्ट मास व्हेन एट J विल से कि दिस मास इज अट्रैक्टिंग द टेस्ट मास. ये जो टेस्ट मास है, दिस विल से कि दिस मास इज अट्रैक्टिंग मी. ओके, with a force, with the gravitational force which is governed by Newton law of gravitation. It's okay. Now, force acting on unit mass, okay, when it is at J. चलते चलते बात हो रही है इससे. Okay, when at J, this force of attraction will be governed by Newton law of gravitation. As this is always attractive in nature, तो हम इसको नेगेटिव लिखेंगे. F इज इक्वल टू माइनस G, मास इज M, M नॉट यूनिट मास, मैंने 1 लिख दिया, ओवर सेपरेशन दैट इज x होल स्क्वायर. क्या होगा? दिस फोर्स विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर. और कहां होगा? ओके, इन विच डायरेक्शन? दिस विल बी लाइक दिस. Force F towards mass M, या towards O you can write, along JO, along JO. तो क्या होगा अगर ओनली यही फोर्स इस मास के ऊपर, टेस्ट मास के ऊपर लगता, तो ये एक्सेलरेट करेगा, डेफिनेटली एक्सेलरेट करेगा, है ना. But we don't want this mass, test mass, to accelerate as it is moving from infinity to point P. क्योंकि हम चाहते नहीं कि ये एक्सेलरेट करे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके नेट फोर्स को जीरो बनाना पड़ेगा. नेट फोर्स जीरो कैसे बनेगा? नेट फोर्स जीरो बनाने के लिए हमें एक एक्सटर्नल एजेंसी लेके आना पड़ेगा. ओके, वो एक्सटर्नल एजेंसी इसके अगेंस्ट फोर्स लगाएगा. विल बी अप्लाइंग इक्वल फोर्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. इट्स ओके. तो कितना फोर्स लगाएगा? ओके, जब ये पार्टिकल, जब हमारा ये टेस्ट मास J पर है, ओके, तो एक्सटर्नल एजेंसी कितना फोर्स लगा रहा होगा? नाउ फोर्स रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड टू हैव टेस्ट मास इन इक्विलिब्रियम. ओके, तो फोर्स अप्लाई कौन करेगा? एक्सटर्नल एजेंट. तो एक्सटर्नल एजेंट कितना फोर्स लगा रहा है? इक्वल टू F बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. यही होगा ना. तभी तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करेगा, एंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट मास विल बी इक्वल टू 0, एंड दैट विल बी इन इक्विलिब्रियम एंड विल नॉट बी मूविंग विद एक्सेलरेशन. इट विल बी मूविंग विदाउट एक्सेलरेशन और विद कांस्टेंट वेलोसिटी. तो फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट व्हेन द टेस्ट मास इज एट पोजीशन J, ठीक, is equal to minus gm test mass over x square, but direction will be opposite. Opposite mean जो ये force of attraction है, this is towards JO. तो ये जो force by external agent है, this has to be from J to infinity. तो इस direction should be J infinity. Okay? along J infinity. It's okay? ठीक है. Now, अब ये ध्यान देने वाली बात है कि इस टेस्ट मास को इंफिनिटी से P तक कौन मूव कर रहा है? कौन मूव कर रहा है? और किस तरह से मूव करना है? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ. देखो, इस F के इन्फ्लुएंस में तो ये एक्सेलरेट करके जा रहा था बेटा. यस और नो? लेकिन इसको कंडीशनली कौन मूव करवा रहा है? यहां से यहां तक इसको इक्विलिब्रियम में कौन लेकर आ रहा है? यहां से यहां तक इसको इक्विलिब्रियम में रहते हुए कौन मूव करवा रहा है? दैट इज एक्सटर्नल एजेंट. इसका मतलब वर्क डन किसने किया? एक्सटर्नल एजेंट ने. एक्सटर्नल एजेंट बेसिकली इज परफॉर्मिंग वर्क टू मूव दिस टेस्ट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट कंडीशनली. दैट इज कीपिंग इट ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम. तो इन द सिचुएशन द वर्क बेसिकली इज डन बाय एक्सटर्नल एजेंट.
अब एक्सटर्नल एजेंट फोर्स कैसा लगा रहा है, लेट अस सी. नाउ as the mass will be coming closer, test mass will be coming closer, okay, from infinity to the point, okay, value of x will reduce. जैसे जैसे वैल्यू ऑफ x रिड्यूस करेगा, फोर्स रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या नहीं. मीन एक्सटर्नल एजेंट हैज परफॉर्म्ड वर्क टू मूव द टेस्ट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट बाय अप्लाइंग अ वेरिएबल फोर्स. क्योंकि ये फोर्स इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, एक्स जैसे जैसे डिक्रीज कर रहा है, द फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट दैट इज इंक्रीजिंग. तो एक्सटर्नल एजेंट ने मास को, टेस्ट मास को मूव किया फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट बाय अप्लाइंग अ वेरिएबल फोर्स. तो हमें जो वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क इज डन बेसिकली बाय अ वेरिएबल फोर्स. नाउ to find work done due to this variable force, dividing the whole distance from infinity to p, जितना भी पाथ ट्रेवल किया ना टेस्ट मास ने, उस पूरे पाथ को हमने इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया. क्यों डिवाइड किया? ईच ऑफ लेंथ dx. और हमने इसको स्मॉल एलिमेंट्स में क्यों डिवाइड किया? क्योंकि we want the force to be constant. ठीक है, पूरे पाथ में फोर्स वेरिएबल है, उस पूरे पाथ को हमने छोटे छोटे इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट्स में कट कर दिया इन सच अ वे कि फोर्स को चेंज होने का लेंथ ही ना मिले, उसको चेंज होने का चांस ही ना मिले. इस dx का वैल्यू इज दैट स्मॉल, ओके, जो हमने डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट कट किया, dx is that small that the force acting on test mass for this length is always constant. dx is that small that force acting for this displacement on test mass is constant. हो गया फोर्स कांस्टेंट. अब आपने जो ये छोटे छोटे पार्ट्स बनाए ना, हर एक पार्ट के लिए वर्क डन फाइंड करो और फाइनली उसका इंटीग्रेशन कर दो, टोटल कर दो. जे लो, एक और पॉइंट हमने एज्यूम किया Q. ओके, टेस्ट मास इज मूव्ड फ्रॉम J टू Q बाय dx. अब dx को हमने कह दिया ना कि फॉर दिस लेंथ द फोर्स इज कांस्टेंट. तो जितना फोर्स J पर लग रहा है, जितना फोर्स एक्सटर्नल एजेंट J पे अप्लाई कर रहा है, ओके, उतना ही फोर्स एक्सटर्नल एजेंट Q तक अप्लाई करता रहेगा, क्योंकि हमने इसको dx एज्यूम किया. नाउ वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट मास फ्रॉम J टू Q. देखो, हमारा एक्सटर्नल एजेंट इज अप्लाइंग फोर्स दिस वे, dx इज दिस वे. तो दोनों क्या हुए, फोर्स अप्लाइड जो वर्क परफॉर्म कर रही है, फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट दिस वे, dx दैट इज दिस वे. ओके, तो एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री. ओके, तो फोर्स एंड dx दोनों में एंगल हुआ 180 डिग्री. फाइन. तो वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट मास फ्रॉम J टू Q. नाउ वर्क डन, ओके, इन मूविंग टेस्ट मास फ्रॉम J टू Q बाय dx. तो dw, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, विल बी इक्वल टू फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट, जो कि हमारे टेस्ट मास को कंडीशनली इंफिनिटी टू p लेके जा रहा है, डॉट dx. इसको ओपन किया, वी आर गेटिंग फोर्स एक्सटर्नल एजेंट dx cos of 180 degree. This is your small amount of work done from J to Q. Okay, अब cos 180 is -1. एक्सटर्नल एजेंट वाला फोर्स हम यहां पे प्लेस कर देते हैं. एक्सटर्नल एजेंट ने कितना फोर्स लगाया था, -gm टेस्ट मास ओवर x स्क्वायर इंटू dx और cos 180 -1. ओके, तो ये जो वर्क डन हमारा स्मॉल वर्क डन बना, दैट इज इक्वल टू नाउ माइनस माइनस प्लस हो गया, gm ओवर x स्क्वायर इंटू dx. इट्स ओके. So this is work done in moving the test mass from J to Q.
फ्रॉम J टू Q। अब हमें क्या करना है, टोटल वर्क डन फाइंड करना है इंफिनिटी टू P। ठीक, तो चेक करना है कि इंटीग्रेशन वेरिएबल क्या है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से एनालाइज करें, वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू dx दैट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। ओके, ठीक है, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे द इंटीग्रेशन लिमिट्स विल बी ऑफ डिस्टेंस ओनली। नाउ फॉर टोटल वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इंटीग्रेटिंग दिस रिलेशन, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है हमारा J टू Q मूविंग द बॉडी बाय dx, तो अब टोटल वर्क डन के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इट्स ओके, ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया। अब इस इंटीग्रेशन के लिमिट्स देखो क्या है, डिस्टेंस का लिमिट, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस रिलेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। नाउ इन पॉइंट दिस पॉइंट इंफिनिटी, ओके, ये O से कितना दूर है, इंफिनिटी, और पॉइंट P O से कितना दूर है, R। तो इंटीग्रेशन लिमिट्स विल बी फ्रॉम इंफिनिटी टू R। नाउ अप्लाइंग द इंटीग्रेशन फॉर्मूला, तो dw का इंटीग्रेशन हुआ तो टोटल वर्क डन आ गया। नाउ यहां पे G एंड M आर कांस्टेंट आउट ऑफ इंटीग्रेशन, तो दिस इज x माइनस 2 dx फ्रॉम इंफिनिटी टू R। इट्स ओके। नाउ सॉल्विंग दिस वी आर गेटिंग वर्क डन इज इक्वल टू GM x माइनस 2 प्लस 1 ओवर माइनस 2 प्लस 1। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 इंफिनिटी टू R। इट्स ओके। नाउ वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव बाहर माइनस 1, ओके, GM x minus 1 is 1 by x, that is infinity to R। It's okay. Now applying the limits, work done is equal to minus G M 1 by x, x का upper limit is R, 1 by R, minus x का lower limit is infinity, 1 by infinity। It's okay, and we are getting work done in moving a test charge from infinity to the point as minus Gm over R, and in accordance to definition, this work done in moving the test mass, unit mass from infinity to the point, this is equal to gravitational potential। Gravitational potential, and we can say that V gravitational potential at any point in the field is equal to minus Gm over R when the field is because of this particular mass, and when the point at which the potential is measured is at a distance R from this particular mass। Hope this is clear। फाइन, ठीक है। तो दिस इज, अगर आपको कहा जाए प्लॉट द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल वर्सेस R, V वर्सेस R इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द मास प्रोड्यूसिंग द फील्ड, मास ड्यू टू विच वी आर कंसीडरिंग द ग्रेविटेशनल फील्ड। ये देखो, ठीक, ओके, V will be this way, R will be inversely proportional, ठीक है, तो it will be this। If we are going to accuracy, ध्यान से देखना, gravitational potential is always negative, ठीक है, तो जनरलिटी पे हम नेगेटिव डिस्कार्ड करके पोटेंशियल वर्सेस R का ग्राफ बना रहे हैं, लेकिन ये 100% एक्यूरेट नहीं है। इफ वी वांट टू अचीव द एक्यूरेसी 100%, अगर हम एक्यूरेटली प्लॉट करना चाहें, देन दिस ग्राफ विल बी इन दिस क्वाड्रेंट। ओके, ये V हमारा आ गया और ये हमारा R आ गया, एंड द ग्राफ विल बी लाइक दिस। दिस ग्राफ इज 100% करेक्ट। ओके, इसमें हमने क्या किया है, पोटेंशियल कंसीडर कर लिया, बट वी हैव नॉट टेकन दिस नेगेटिव इनटू अकाउंट।
हमने सिंपली एक पोटेंशियल का वेरिएशन दिखा दिया आर के साथ। लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है, ओके, दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्सेस अट्रैक्टिव इन नेचर। It's okay. Hope you have understood the gravitational potential in a good way. Go through this particular content, okay, given in book, okay, as this is given in book, okay. So you go through that, and if you find any kind of confusion, let me know about. Then we will be taking it in the next video. Fine. Thank you. Have a nice time.